Hi friends, today I am in front of you to talk about the career opportunities in life, particularly after 12th class. Talent is prime factor or backbone for any success in life. In career, it's also comes on ranking 1. But what after talent? With talent management, time management is of equal importance. Time should be managed according to the need and demand of the career. Hence, after 10 plus 2 or after 12th class, when a student is in his or her adolescence period age, he doesn't know much about the careers opportunities, careers avenues which he or she must choose. She know only about few traditional subjects like medical, engineering and few others. If it depends upon the background of the student. Here I am going to talk about various career opportunities after 12th class. I have provided a broader classification of eight sectors here, and one by one I will talk about the each and every fields available under these broader classifications. Dear students, now let us start. Here first of all I am going engineering sector, after that medical sector, and after that defense engineering. First topic, no doubt, IIT JEE, Indian Institute of Technology. We all know IITs are the first choice of any talented student who has taken math in his or her 12th class. Today IITs are, how many numbers of IITs are available in India? Do you know? 23. 23 IITs are now available in India. Joint entrance exam is taken. Hence, you may prefer this one. But this is not last field or last career opportunity which you should opt. I am going to talk another next. Automobile engineering. Here you may get several chances in automobile engineering. Genetic engineering, fire engineering, marine engineering, agriculture engineering, robotics engineering, aeronautical engineering, nuclear science, printing technology engineering, nuclear field and space sector. Except IITs and regional colleges of engineering, other state level engineering colleges, these are the several other fields where you may apply for admission, and after admission you get a very marvelous handsome career in your life. आइए हम आपको कुछ बता देते हैं इसमें से डिटेल्स में. जैसे हम आईआईटी और जेई को तो छोड़ते हैं क्योंकि आप जान जाते हैं इनके बारे में, लेकिन जैसे रोबोटिक इंजीनियरिंग का कैरियर है, आप जानते हैं कहाँ क्या इसकी पढ़ाई होती है. इसकी पढ़ाई के लिए देखिए आईआईटी दिल्ली, मुंबई, कानपुर, मद्रास, गुवाहाटी, खड़गपुर, रुड़की सभी जगह होती है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में इसकी पढ़ाई होती है. सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स बेंगलुरु में इसकी पढ़ाई होती है. बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बिट्स पिलानी में इसकी पढ़ाई होती है राजस्थान में. कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोच्चि में होती है. वीर माता जीजाजीबाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मुंबई में होती है. थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला में होती है. यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हैदराबाद में होती है. तो देखिए रोबोटिक इंजीनियरिंग के बारे में मैंने आपको इतने इंस्टीट्यूट्स बता दिए जहाँ पे आज ये पढ़ाई होती है. ये देखिए इसमें बताया गया है रोबोटिक्स के क्षेत्र में करियर बनाने वाले को सबसे पहले यह करना होगा कि वह कंप्यूटर, आईटी, मैकेनिकल, मैकेट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी या बीटेक की डिग्री प्राप्त करें. यदि आप उच्च अध्ययन करते हैं तो इस क्षेत्र में आपके प्रवेश की संभावना और अवसर दोनों ही बढ़ जाएंगे. देखिए तो ये सुझाव है आपके लिए कुछ. अब जैसे
एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में देखिए बता देता हूँ इंस्टीट्यूट के नाम। प्रवेश का आधार वही ग्रेजुएट कोर्सों में प्रवेश मेरिट के आधार पर होता है। यहाँ पे आईआईटी में प्रवेश के लिए 12वीं कक्षा में प्राप्त अंक एवं संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेई में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जाती है। अन्य संस्थान अपनी अलग प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर पर अन्य प्रवेश देते हैं। ये मैंने बताया एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। देखिए ये फील्ड्स में बता रहा हूं आपको। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आइए इंस्टीट्यूट बता देता हूं आपको। जेनेटिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कहाँ कहाँ होती है? आईआईटी मद्रास और खड़गपुर यानी चेन्नई और खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना, राजेंद्र एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी समस्तीपुर बिहार, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स नई दिल्ली। ये मैंने बताया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई यहाँ होती है। तो मैंने इसमें 2-3 चर्चाएं कर दी। अब आगे बढ़ते हैं मेडिकल के फील्ड में। देखते हैं, वीडियो बनाना इसलिए छोटा छोटा ही बोल पाऊंगा, आप डिटेल्स जरूर जानें। मेडिकल में आज भी एमबीबीएस का क्रेज है। एमबीबीएस के बारे में सभी बच्चे जान गए हैं, सभी इसके बारे में इच्छा रखते हैं एडमिशन लेने के लिए। देखिए इसके मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में कुछ प्रमुख हैं, जैसे सीबीएसई एमबीबीएस के लिए बोल रहा हूँ, एआईपीएमटी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में, उत्तर प्रदेश कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट सीपीएमटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, वर्धा मेडिकल कॉलेज टेस्ट वर्धा, आर्म फोर्स पुणे आदि में एमबीबीएस के लिए अप्लाई किया जा सकता है। एमबीबीएस के अलावा फार्मेसी में लीजिए आप एडमिशन, डेयरी टेक्नोलॉजी दुग्ध उद्योग में, दुग्ध प्रौद्योगिकी में आप एडमिशन ले सकते हैं 10+2 के बाद, 12th के बाद। पशु चिकित्सा में, वेटनरी साइंस में, माइक्रोबायोलॉजी में आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं एमबीबीएस के अलावा। तो देखिए इतने सारे फील्ड मैंने केवल मेडिकल में बता दिए। अब नेक्स्ट फील्ड आते हैं हम लोग मेडिकल के बाद डिफेंस में। डिफेंस में एज यू नो हम जा सकते हैं, जैसे 10+2 के बाद ही बच्चे 60% एंड एबव मार्क्स होने पे एयरफोर्स के टेक्निकल में जा सकते हैं। एयरफोर्स नॉन टेक्निकल दोनों का होता है, नेवी का होता है, कोस्ट गार्ड का होता है, आर्मी में होता है, एनडीए का होता है ऑफिसर्स के लिए, पैरामिलिट्रीज में होते होंगे, बीएसएफ में होते हैं, सीआरपीएफ में होता है, सीआईएसएफ में होता है। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी ग्रेजुएशन लेवल पे होती है, लेकिन यहाँ पे आप 10+2 के बाद इतने सारे फील्ड्स आपके लिए। और इसके बाद डिफेंस ऑफिसर में, फिर स्ट्रेटजिक सेक्टर में, कोस्ट गार्ड में, मैंने ये लिख रखे हैं 4 डिफेंस में। तो दोस्तों मैंने ये बताया 3 फील्ड डिस्कस किए यहाँ पे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, डिफेंस। मैंने बताया था 8 सेक्टर में मैंने डिवाइड किया है टोटल का क्लासिफिकेशन। तो आइए अगले 5 को देखते हैं। हियर एविएशन एक ज़बरदस्त फील्ड है जहाँ पे हम लोग के कैरियर की अपॉर्चुनिटी अपार है। मैंने यहाँ पे ब्रॉडर 2 सब क्लासिफिकेशन किए हैं, 2 कैटेगरीज, फ्लाइंग स्टाफ और ग्राउंड स्टाफ। आइए हम बताते हैं फ्लाइंग स्टाफ और ग्राउंड स्टाफ मिलके कितने सारे होते हैं इसमें पद, और जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए, और अपना सुनहरा भविष्य संवार सकते हैं। पायलट के तौर पे आप जरूर ट्राई करिए, तो सबसे फेमस फील्ड है। पायलट के बाद इंजीनियर के तौर पे यहाँ पर एविएशन में, केबिन क्रू के तौर पे, एयर होस्टेस के तौर पे। एयर होस्टेस की देखिए, एयर होस्टेस का कार्य उड़ान के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान रखना इनका मुख्य कार्य है। इसके अलावा आपातकालीन निर्देश, संस्थान और यात्रा के दौरान अन्य जानकारियों को यात्रियों को उपलब्ध कराना इनका कार्य होता है। तो देखिए ये एयर होस्टेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्लाइट स्टीवर्ड के लिए, फ्लाइट इंजीनियर के लिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स होते हैं, एटीसी में आप कर सकते हैं, मेटीरियोलॉजिस्ट में कर सकते हैं। तो इतने सारे आपको फील्ड्स दिखते हैं। इसमें टॉप इंस्टीट्यूट में कुछ बता देता हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉट्स दिल्ली में, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉट्स पटना में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉट्स साइंस जमशेदपुर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल साइंस कोलकाता में,
एवलोन एविएशन एकेडमी अब टच हाउस में, ये हो गए। और नौकरी कहाँ कहाँ मिल सकती है? इंडियन एयरवेज में, किंग फिशर में, एयर इंडिया में, एयर डेक्कन में, लुफ्थानसा इंडियन एयरलाइंस में, एलियंस एयर में, पैरामाउंट एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड में, जेट एयरवेज में। ये सब कुछ जगहें हैं जहाँ पे सारे बच्चे पास करके एविएशन से और जा रहे हैं। और सारी भी बहुत सारी सेना में, हर जगह तो इसके स्कोप हैं। आइए अब अगला फील्ड हम देखते हैं, फैशन टेक्नोलॉजी। निफ्ट सारे बच्चियों को पता रहता है जो 12th में आते हैं, नोन फील्ड है निफ्ट का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। लेकिन क्या यहीं पे रुक जाना है? क्या यही है फैशन टेक्नोलॉजी में फील्ड? नहीं, और भी है। जैसे फुटवेयर डिजाइनिंग का है, मॉडलिंग कर सकते हैं कोर्स, ज्वेलरी डिजाइनिंग का है। आप यहाँ करके और अच्छी से अच्छी नौकरी पा सकते हैं। आपके पास टैलेंट है तो आप सेटिस्फाई फील कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ ये मॉडलिंग के लिए कहाँ कहाँ, ज्वेलरी डिजाइनिंग के लिए चलिए बता देता हूँ, मॉडलिंग छोड़ देता हूँ। ज्वेलरी डिजाइन के लिए कोर्स कहाँ कहाँ हो रहा है? आर्ट जेमोलॉजी एंड ज्वेलरी इंस्टीट्यूट जयपुर राजस्थान, ज्वेलरी डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट नोएडा उत्तर प्रदेश, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेमोलॉजी करोलबाग दिल्ली, जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मुंबई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हौज खास नई दिल्ली। यहाँ पे आप ज्वेलरी डिजाइनिंग में भी कोर्स कर सकते हैं। तो देखिए मित्रों, मैंने आपको कुछ नए फील्ड्स यहाँ पे बताए। एविएशन हो गया, फैशन हो गया, इंजीनियरिंग, मेडिकल और डिफेंस वहाँ कर दिया, 5 हो गए। छठवां देखते हैं, मोस्ट पॉपुलर फील्ड यानी कंप्यूटर का क्षेत्र, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र। आईटी कैरियर तो आपके साथ है। इसके अलावा आप कंप्यूटर नेटवर्किंग में कोर्स करिए, बहुत सारे कोर्स हैं। केमिन फॉर्मेटिक्स में कर लीजिए, ग्राफिक डिजाइन में कर लीजिए, मल्टीमीडिया में करिए, कंप्यूटर अकाउंटिंग का कोर्स है, ई कॉमर्स के लिए, वेब डिजाइनिंग में बहुत सारे ब्लॉगिंग वगैरह चल रहा है इस समय बहुत, और सॉफ्टवेयर कोई सीख लीजिए, सॉफ्टवेयर में कर लीजिए। तो इस तरह से आपको एम्पल अपॉर्चुनिटी है आईटी के क्षेत्र में, और कैरियर भी है देश विदेश हर जगह पे, और सारी की सारी ये खुल रहे हैं 12th क्लास के बाद। तो मित्रों आप इसमें ज़रूर आजमाएं अपने हाथ। अब आगे हम चलेंगे, उसके पहले आइए इंस्टीट्यूट कुछ बता देता हूँ, हम दिखा देते हैं इसमें। केमो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में, केमो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। केमो डेटा को कंप्यूटर की सहायता से एक्सेस या चेंज करने का काम होता है केमो इन्फॉर्मेटिक्स में। केमो इन्फॉर्मेटिक्स का प्रयोग ड्रग डिस्कवरी प्रक्रिया में होता है। इसमें शोधकर्ता अलग अलग रसायनों का जैविक प्रभाव तलाशते हैं। आपको इसके बारे में जानकारी दी मैंने। अब चलते हैं आगे। हॉस्पिटलिटी में और मिसलेनियस, यहाँ पे 2 फील्ड बचे। तो पहले 3 मैंने डिस्कस किया, इंजीनियरिंग, मेडिकल और डिफेंस। बाद में 3 डिस्कस किया, एविएशन में, आईटी में, ये आपको दिखाते चलता हूँ, एविएशन में, फैशन टेक्नोलॉजी में और आईटी में। और अब अगला दिखाता हूँ आपको, हॉस्पिटलिटी में और मिसलेनियस बहुत सारे फील्ड्स है। हॉस्पिटलिटी में देखिए, होटल इंडस्ट्री में बहुत गहरी संभावना है, बहुत विशाल संभावना है। कैटरिंग में, कैरियर ऑन क्रूज, इवेंट मैनेजमेंट, इस समय नया एवेन्यूज खुला हुआ है सबके लिए। मर्चेंट नेवी, यहाँ पे नॉर्मल नेवी जो सेना वाली नेवी से मर्चेंट नेवी अलग होता है, और बहुत अच्छी सैलरी वगैरह, पैकेज वगैरह यहाँ पे है। तो 10+2 के बाद सारे खुलते हैं 12th के बाद। अब आइए आपको बताता हूँ मिसलेनियस और कौन कौन बच जा रहे हैं। जैसे फायर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट इस समय हर जगह बड़ा सा स्कोप लेके आया हुआ है। नैनो साइंस में, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में, अर्थ साइंस में, और सबसे मजेदार ये देखिए, डीजे में, डीजे जो बजता है ना शादी में, पार्टी में, डीजे का फुल फॉर्म होता है डिस्क जॉकी। इसके अलावा पुरातत्व विभाग में कैरियर इन आर्कियोलॉजी, रिकॉर्डिंग इंजीनियरिंग में, कैरियर इन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, पशु चिकित्सा में, जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र में, कॉमर्स के फील्ड में सीए हो जाना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, ये सब की फील्ड में। तो मित्रों मैंने ये 8 ब्रॉडर क्लासिफिकेशन के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों का डिस्कशन किया आपके साथ। आप आशा है ध्यान रखेंगे और इस पर इधर जाने की चेष्टा करेंगे। आइए थोड़ा आगे देख लेते हैं हम।
आगे देखते हैं यहाँ पे प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस इंजीनियरिंग, नो डाउट आईआईटीज हैं। अभी मैंने आपको बताया था इस समय देश में 23 आईआईटीज हैं। मैंने कुछ के यहाँ पे वेबसाइट दिए हुए हैं, देख लीजिए। नॉर्मल लिखा हुआ है https://www.iitk.ac.in। सेम पैटर्न पे सभी है, जैसे आईआईटी कानपुर का था आईआईटी के लगा दिया, आईआईटी चेन्नई तो आईआईटीएम मद्रास के लिए, आईआईटी बीएचयू तो आईआईटी BHU.ac.in सब में। केवल एक भुवनेश्वर वाले में IIT-BH है, ये थोड़ा ध्यान रख के टाइप करिए। और सब का एक ही पैटर्न पे है, आप नाम के साथ फर्स्ट लेटर आईआईटी के साथ फर्स्ट लेटर लगाया हुआ है। खड़गपुर में IIT KGP 3 लेटर लगाए हुए हैं, और इसमें गांधीनगर में GN लगाया हुआ है 2 लेटर, और सब तो सेम एड्रेस से जाइए, डिटेल्स जानिए वहाँ का। तो ये हमने आईआईटीज़ की चर्चा कर दी। भारत के प्रीमियर इंस्टीट्यूशन नो डाउट आज भी हैं। पहला आईआईटी से लेके आज तक 51 में खुला था खड़गपुर में, और अब 23 आईआईटीज़ हैं हमारे देश में। तो इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए बच्चों के पसंद है निफ्ट। तो निफ्ट की वेबसाइट से मैंने ये डाला हुआ है, निफ्ट का वेबसाइट है वही https://www.nift.ac.in। ये है आईआईटी निफ्ट का। और निफ्ट के बाद हम देख लेते हैं अपने देश के एक और प्रीमियर इंस्टीट्यूशन का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का। ये एड्रेस है, इसका भी सबके अंत में ac.in लगा हुआ है, iisc.ac.in। तो मित्रों, मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। आपको मैंने बताने की चेष्टा की कि कौन कौन से एवेन्यूज़ हैं 12th पास करने के बाद, जहां आप अप्लाई करिए, एडमिशन लीजिए और कैरियर बनाइए अपना। अब ये मैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कोट करना चाहता हूँ, अदर सोर्सेज के अलावा छोटा मोटा जो यहाँ से पढ़ा होगा। मुख्य सोर्स इसका ये बुक है। ये किताब हमारे यहाँ न्यू अराइवल्स में अभी नई हमारी लाइब्रेरी में बहुत किताबें आई हैं, जिसमें से ये बुक है 10+2 के बाद कैरियर, संजय कुमार लेखक, दिल्ली आविष्कार प्रकाशन 2020 का ये संस्करण हाथ में लिया हूँ। इसका ISBN है 978189412833। प्राइस है 400 रुपीज, और इसका हमारा मैंने एक्सेसनिंग कर दी है। इस बुक का अधिग्रहण संख्या हमारे विद्यालय की 8931। तो ये रहा डिटेल्स इस पुस्तक का, जिसको मैंने उपयोग में लाया और ये वीडियो बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मित्रों, आपने हमारी वीडियो सुनी और आपने जाना कि क्या है। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।